तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं आपके सामने। तो आज कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगी, जो स्पेशली रशिया और यूक्रेन के युद्ध के लिए ज़िम्मेदार हैं। उसके ऊपर कुछ बातचीत आज होगी आप सबके साथ। तो एक नया इशू है जिसका नाम है रशियाज़ न्यू ऑफेंसिव, व्हाट इट मीन्स फॉर यूरोप। जो अभी के जो हालात है उसको देखते हुए वो इसके लिए यूरोप के लिए ये क्या हालात बन सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में कुछ बताऊंगा आज। तो देखिए, शॉर्टकट में तो कुछ होता नहीं है, जो भी होता है थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए हमेशा। इससे क्या होता है, जो हमारा जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जो वो थोड़ा अपडेट रहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या उसका मतलब निकल सकता है जो न्यू ऑफेंसिव हुआ है। Russia's latest military offensive in Ukraine marks a turning point in the ongoing conflict with far-reaching consequences for Europe. Ukraine earlier faces. This offensive is more aggressive and better coordinated, involving heavy artillery, drones, and missile attacks across multiple fronts. For Europe, this escalation has triggered significant concern regarding security, unity, and long term stability. One of the most immediate effects is the reinforcement of NATO's eastern flank. Countries like Poland, Romania, and the Baltic states have increased military readiness while NATO conduct large scale joint exercise. This reward focus on defense highlights the return of traditional security. Renewed focus on defense highlights on the return of traditional security threatens on Europe's soil. ठीक है, तो ये कुछ हाँ हाँ Russia's latest military offensive, Ukraine, marks a turning point on ongoing conflict with far-reaching consequences for Europe. Unlike earlier phase, this offensive is more aggressive and better coordinated, involving heavy artillery, drones, missile attacks across multiple fronts for Europe. ठीक है, the escalation has triggered significant concern regarding security, unity, and long-term stability. One of the most immediate effects of the reinforcement of NATO's eastern flank, countries like Poland, Romania, and the Baltic states have increased military readiness while NATO conduct large-scale joint exercises. This renewed focus on defense highlights the return of traditional security threats on European soil and reminiscent of Cold War tensions. The offensive also depends Europe's economic vulnerabilities. Energy prices have risen again due to fears of supply disruptions, and trade with both Russia and war-affected region has slowed. Moreover, refugee flows from Ukraine have increased, putting further pressure on European nations' social systems. Politically, the offensive has both unified and tested Europe. While most European states support Ukraine, internal divisions are growing as war fatigue sets in. Russia's hybrid tactics, including cyber attacks and disinformation, are also threatening democratic processes across the continent. Thus, Russia's new offensive is not just a military threat but a challenge to यूरोप्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटीग्रिटी। तो ये मामला तो था इंग्लिश में, तो इसको मैंने हिंदी में भी तर्जुमा करके रख दिया है, तो इसे आपको हिंदी में समझा देते हैं। ठीक है, मामला क्या है? रूस का नया आक्रमण, यूरोप के लिए इसके क्या मायने हैं? ठीक है, 200 वर्ड का है, इसको मैंने अपने ब्लॉग में बना रखा है, तो देख लेते क्या है मायने। यूक्रेन पर रूस का नया सैन्य आक्रमण इस लंबे संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
जिसका यूरोप पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। यह आक्रमण पहले की तुलना में अधिक आक्रामक, संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल और भारी तोपों का उपयोग किया जा रहा है। यूरोप के लिए सबसे सीधा प्रभाव सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जा रहा है। पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक देशों जैसे पूर्व यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने सेनाओं को उच्च अलर्ट पर रखा है और नाटो देशों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं। यह स्थिति शीत युद्ध के दौर की याद दिला रही है, जब यूरोप पर पारंपरिक सैन्य खतरों का साया मंडराता था। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यूरोप पर इसका गहरा असर गंभीर है। ऊर्जा की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई है और यूक्रेन के व्यापार में भारी रुकावट आई है। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या यूरोपीय देश की सामाजिक सेवाओं पर दबाव बना रही है। राजनीतिक रूप से यह आक्रमण यूरोप को एकजुट तो कर रहा है, लेकिन साथ ही आंतरिक मतभेद भी उभर रहे हैं। रूस के साइबर हमलों और झूठी सूचनाओं की रणनीति यूरोप के लोकतंत्र को भी कमज़ोर कर रही है। इस प्रकार रूस का यह नया आक्रमण केवल सैन्य खतरा नहीं है, बल्कि यूरोप की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या हो रहा है और इस आक्रमण का क्या फल निकलेगा, ये देखने वाली विषय है। तो अगले 2 या 3 दिनों में ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। क्या ये रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, क्या ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है या कुछ और हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस बार जो हमला यूक्रेन ने किया है ड्रोन से, तो पुतिन इसका जवाब तो ज़रूर देंगे और इसका जवाब बेहद कड़ाई से दिया जाएगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस बार पुतिन जो है वो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं यूक्रेन को जवाब देने के लिए। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुतिन किस तरह का जवाब देंगे, लेकिन जो भी जवाब रूस की तरफ से आएगा वो बेहद निर्णायक जवाब होगा इस बार।